नमस्कार, सभी लोगों का आपका स्वागत है और इस पैनल में हमारे साथ बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, तो उनको मंच पर बुलाने से मैं शुरुआत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र डोभाल इसमें होंगे। डॉक्टर राजेंद्र डोभाल इज़ द वाइस चांसलर ऑफ स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी एंड चेयरमैन ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया उत्तराखंड, ए डिस्टिंग्विश्ड साइंस एडमिनिस्ट्रेटर। ही शेप्ड Uttarakhand Science and Technology Infrastructure and AI-based Science City. With nearly 200 research papers and multiple awards, he has held key national scientific advisory roles. At Valley of Words, he heads the Aristolia Forum for Sustainability. Sir, बहुत बहुत स्वागत है आपका. Please मंच पे आइएगा. Then we have Mr. Harish Bahugna, a university topper in geology, joined the Geological Survey of India in 1997 and is currently Deputy Director General, Geotechnical and Geohazard Management. A recipient of the National Geoscience Award 2022, he has authored over 40 technical papers and serves on key government and scientific committees. So please welcome. Then we have Dr. Kusum Arunachalam. She is a professor at Doon University who specializes in restoration, ecology, and natural resource management in Indian Himalayas. With over 27 years of experience, she integrates scientific research with indigenous knowledge, has led major projects, and received awards like the National Young Woman Bioscientist Award for her contributions to ecology and sustainability. Ma'am, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर। तो ये टॉपिक जैसे अपने आप में ही बहुत सजेस्टिव है कि द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, आर वी लिसनिंग। इसको दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग जब हम कह रहे हैं तो अब उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो एक फैक्ट बन चुका है, एक तथ्य है, एक स्टेटमेंट है। बहुगुणा सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि जब हम ये कहते हैं ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, तो उसको ताकि आम लोग ये समझ पाएँ कि वो कितना गंभीर है और हम कुछ डेटा के आधार पर, फिगर्स के आधार पर अगर उसको समझना चाहें तो वहाँ से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसमें से कुछ इन्होंने कहा कि कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो मुझे लगता है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस आई विल बी शेयरिंग विद यू सम हार्ड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लाइन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट्स that includes National Disaster Management Authority, NRSC, ISRO, and Geological Survey of India. So that is all hard, factual, official information on glaciers and glacial lakes. So, yes, glaciers are retreating, as we say. Melting is one part of the retreat. And there are two things technically. Normally, what we see visually is the retreat in terms of the length of the glacier, by how many meters or kilometers it has gone back. The another scientific and important fact is mass balance, how much mass of ice it is holding, right? So it retreats where the mass of ice is thin, it melts and goes back. But the real worrisome sign would be if the mass balance is going negative. And yes, in many of the glaciers that GSI has studied, mass balance is also on the negative side. However, what we in scientific terms say the Karakoram anomaly. Karakoram is one part where the mass balance is positive. There are other intricacies in deciphering that, understanding that. I will not be dwelling upon that. But yes, what happens with glacial retreat is the formation of glacial lakes ahead of the glacier snout and within the body of the glacier. So what we call them pro-glacial lakes and supra-glacial lakes, right? What we have seen Chorabari or South Lonak. इनके ब्रीच से जो डिजास्टर्स हुए हैं, दैट हैज़ अफेक्टेड नॉट ओनली द मैनकाइंड बट हैज़ इन्फ्लिक्टेड कोलोसल डैमेज ऑन द इकोलॉजी, right? So I just wanted to share some figures with you, official, if you allow me. That will be quite interesting for you, and they are, as I said, official ones. And to begin with, there are कुछ ट्रेंड्स भी सर, अगर हम डिकेड वाइज कुछ ट्रेंड्स देख पाते हो जो मेजर ट्रेंड्स हैं जब हम कहते हैं ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग। आई विल कम टू दैट आल्सो। आई गिव यू दैट इंफॉर्मेशन विद द most relevant one will be the Gangotri Glacier for all of you here in Uttarakhand sitting here. So this is the source is ISRO NRSC.
First thing, and the one figure that at the outset I want to share with you is we have in all the basins, the Indus, Ganga and Brahmaputra basin, we are having 9,575 glaciers. This is glaciers I'm talking about, smaller and larger ones. Now, as I said, when they are retreating, they are leaving some glacial melts by forming the glacial lakes right in front or within the body. So I'm just sharing with you. There are 7,570 glacial lakes identified by NRSC ISRO. And out of these, 537 are in Himachal Pradesh, Uttarakhand has 347, Sikkim has 733, Arunachal has 2,188, Jammu Kashmir 546, and Ladakh 3,219. Now this is the total data universe for the glacial lakes. Now out of these 7,000 plus 500 plus glacial lakes, there has been an attempt by NDMA to assess how many of them are hazardous, right? They may be having a chance, probability of breaking down, breaching in the near future. So that data is, for the three basins, they have identified in total 490 glacial lakes to be hazardous. Out of these 490, 302 are trans-border. That means the glacial lakes are lying in other country, maybe Tibet, right, Nepal, but the flow will be coming to India. They will be having some damage in the Indian side. And remaining 188 are within India. And out of these 188, they have further categorized, NDMA had categorized them into A, B, and C, and uncategorized category. And that data I'm sharing with you. A category, out of these 188, 66, then 66 is total. Out of these, transboundary are 24, and in Indian side, it is the 42. Now again, if you look at the breakup of these 42 dangerous lakes, highly risky glacial lakes, the data is in Ladakh, they are category A, 3. In Jammu and Kashmir, they are 6. Then Himachal Pradesh, they are 10. In Uttarakhand, they are 5. In Sikkim, they are 15. And Arunachal Pradesh, 3. So these are the 42 dangerous lakes that have been categorized under highly dangerous lakes out of the 188 that I spoke with you. And I am happy to share that out of the 5 dangerous lakes in Uttarakhand, all of them have been studied by Geological Survey of India. And they are, I can share the names also, Kedar Tal, Vasudhara Tal, Kedar Tal, Vasudhara Tal is in Chamoli, then Mabang in Pithoragarh, Simti, Yangti, and Pinguru in Pithoragarh district. So these are the 5 most dangerous glacial lakes that have been identified in the state of Uttarakhand, and they all have been studied by Geological Survey of India. Now coming to the question that Rahulji asked me, Gangotri Glacier I was talking about. See, Professor Waldia, I think most of the people will be knowing, Khadak Singh Waldia is a renowned pioneer geologist that the country ever had, not only Uttarakhand, but the country ever had. In his book, if you find that he mentions about Gangotri Glacier, that nearly 26,000 years ago, the snout of Gangotri Glacier was probably near Jhala, which is roughly 40 kilometers or 42 kilometers of the present position. Now, if you work out the rate of retreat for this 40 odd kilometers in 26,000 years, that comes down to 1.5 meter per year. Right? So that is spread over 26,000 years. But now, from 1935 to 1990, the rate of Gangotri snout was 21 meters per year, which between 1990 to 2017, it increased up to 22 meters. And from 2017 to present, in the last 8 years, the rate has gone up to 33 meters per year. So that's the rate of retreat that you are talking about. And the rate of retreat, I just want to share with you, is faster in the northeastern part of the country and in extreme Ladakh area, right? The snow line is much higher there. So rate of retreat is faster there as compared to the Himachal Uttarakhand part.
डोभाल सर, ये कितना अलार्मिंग है? सर ने बहुत सारे फिगर्स के साथ में इस्टेब्लिश किया और एक ट्रेंड भी बताया। ये कितना अलार्मिंग है, क्योंकि आम लोगों को जब हम ये कहते हैं ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, वो अपनी डायरेक्ट डे टू डे लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते हैं उसे, कि हाउ दे आर बीइंग अफेक्टेड बाय इट। तो इस पहलू पे आप एक बार ज़रूर बात रखिएगा कि हाउ अलार्मिंग इट इज़। हम उस पर बाद में बात करेंगे कि आई विल लिसनिंग, लेकिन एक आम लेमैन के लिए जब हम कहते हैं ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, हाउ अलार्मिंग दिस सिचुएशन इज? देखिए, जो ह्यूमन नेचर है ना हमारा, हम किसी चीज़ को अलार्मिंग नहीं समझते। लोग रोज़ बह रहे हैं, लेकिन आप देखोगे फिर उसी के किनारे अपना घर बना देंगे। अलार्मिंग मैं एक साइंसदान हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये बहुत डिसास्टर है। आने वाले टाइम पे हर साल हम डिसास्टर देखते, कोई साल ऐसा नहीं है जब हम इस तरीके के डिसास्टर्स नहीं देखते हैं। जैसे इनका डेटा तो 300 कुछ का है, मेरे पास जो डेटा NRIC का जो एटलस है उस पर दे हैव कैटलॉग नियरली 426 ग्लोब्स, 426 तालाब बने हैं। जैसे ग्लेशियर से पानी बहता है तो रुकता भी है तो तालाब बन जाते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर बड़ा कम होता है तो कई बार वो ड्राई होकर फिर स्नो बन जाती है, तो स्पेस उसको लेक नहीं दिखाता है, फिर वो पिघलती है तो फिर वो लेक का फोटो आ जाता है। तो ये दिस फिगर गोज ऑन फ्लैक्चुएटिंग समटाइम। जितना सैटेलाइट को दिख गया, जिस समय उन्होंने अपना बनाया होगा उस समय उतनी रही होंगी। लेकिन एक चीज़ हमको ये समझनी चाहिए कि हम लोग, खास करके जो पहाड़ के लोग हैं, जैसे उत्तराखंड है, ये जो ग्लेशियर वाले ज़िले हैं वो ठीक ग्लेशियर के नीचे ही रहते हैं। एक दूसरा ये बताएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जब सी के नीचे था पूरा एरिया, केदारनाथ में जो केदार का मतलब है वो मार्शी लैंड से, केदार का मतलब शिव बताते, लेकिन उसका असली अर्थ है मार्शी लैंड। तो वहाँ पे धान के सीड्स मिले थे और जब उनको रेडियो एक्टिव उसके हाफ लाइफ पीरियड निकाला गया, उससे पता चला कि यहाँ पर तो धान होता था और ये मार्शी लैंड थी। मतलब सी सिंक किया होगा, एक दिन में तो किया नहीं होगा। तो जब नीचे गए तो रॉक के ऊपर बहुत बड़ी मिट्टी की लेयर है, मिट्टी है पूरी, अंदर कहीं रॉक है। उस मिट्टी के ऊपर हमारे गांव बसे हुए, बसाहट है पूरी। तो रॉक और मिट्टी जहां मिलती है वहां पर जब पानी घुसेगा तो पूरा गांव स्लाइड हो जाए और बड़ी स्पीड से होगा, क्योंकि आपके पास ग्रेडियंट बहुत हाई है। ठीक है ना? तो हम ढेर में तो बैठे ही हुए, बता अलार्मिंग क्या होना। ग्लेशियर स्लो स्लो उस रॉक और उसके, आपने देखा होगा कई गांव बहे हैं हमारे, वो ऐसी बहे हैं। रॉक और उसका कनेक्ट उसने खत्म किया और आप सारे के सारे, आपको पता नहीं, आप चल दिए वहां से। दूसरा, एक स्टडी हमने कराई थी जिसमें हमने कार्बन फुटप्रिंट ग्लेशियर्स पे निकाले थे, नैनीताल में जो एरीज। तो जो हम गाड़ियां 60 हज़ार गाड़ियां एक दिन में पहुंचा रहे हैं, SUVs, उसके जो कार्बन वो है वो बर्फ में मिल रहे हैं, वो हीट ले रहे हैं और वो गिर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण है। ये गिरते रहेंगे, लोग डूबते रहेंगे। किसका नंबर कब आएगा ये मैं नहीं जानता, किसी ज्योतिष के पास जाइए कि किसका नंबर कब आएगा। लेकिन ये जो, अच्छा, मैं अगर एक छोटा सा अनुमति दें तो मैं आपको बता दूं कि सारे दुनिया में देयर आर 2 फैकल्टी ऑफ थॉट्स, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स रिगार्डिंग ग्लेशियर मेल्ट। पहली वाली, जिसको मैं सही समझता हूँ, बातें बताऊंगा। दूसरी ये है कि एंथ्रोपोजेनिक रीजन है, कि बहुत गाड़ी चला रहे हैं, बहुत AC चला रहे हैं, तो इससे हो रहा है। उसका लोकल इम्पैक्ट तो होता है भाई। देहरादून में जब जंगल ही जंगल था, 2-4 टांगे चलते थे तो क्लाइमेट और थी। आज यहाँ की पॉपुलेशन साइज देख लीजिए। और हिंदुस्तान में मैं बता दूं, हम बड़े लोएस्ट, हमारे
150 करोड़ लोगों में 10 करोड़ गाड़ियां हैं, हमारे यहाँ कार ज़्यादा नहीं है, वो तो कंसंट्रेटेड है इसलिए ज़्यादा लगती हैं आपको। हम पोरेस्ट गरीब कंट्रियों में अभी कार्स नहीं है लोगों के पास, तब तो ये हाल है। तो वो जो ये जो थ्योरी है कि ये जो हमारे जो लग्जरी लाइफ है इसने ग्लेशियर मेल्ट करा है, दरअसल ऐसा नहीं है, ये लोकल लेवल पे होगा। जो बड़ा थॉट है वो सबसे पहले 1945 में एक साइंटिस्ट ने पकड़ा था, और वो है अर्थ रोटेशन सिस्टम, जिससे सन घूम रहा है, जो बड़ा एक चक्र है, और वो अपना जब घूम रहा है तो अर्थ की पोजीशन भी चेंज होती है, और उससे जहाँ कहीं टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं टेम्परेचर घटेगा। यही कारण है कि मरुस्थलों में आजकल भयंकर बारिश होती है, जहाँ बारिश नहीं होती थी, और जहाँ बारिश होती थी वहाँ नहीं हो रही है। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप दुनिया का अर्थ रोटेटरी सिस्टम पर भी मेयर हाइपोथेसिस बोलते हैं, उसने 45 में रिमोट सेंसिंग ये साइंस नहीं था, तो उसने 13 ग्लेशियर नॉर्थ के वर्ल्ड के लिए थे, और पहली स्टडी उसने एक हाइपोथेसिस दी थी ग्लेशियर रिट्रीट की। और ठीक 50 साल के बाद 1995 में मैंने और एक एस.एस. रघुवंशी, हमने उसको मेयर्स हाइपोथेसिस में एक करेक्शन ऑफर किया था, जिसको वेस्ट वालों ने बहुत बुरा माना, बहुत ख़राब माना, और हमारा पेपर छापने से मना कर दिया उन्होंने। लेकिन तब से आज तक जो ग्लोबल ये क्लाइमेट चेंज पे और ग्लेशियर्स पे जो भी स्टडी हो रही है इन पर्टिकुलर, वो अर्थ रोटेशन सिस्टम वाली थ्योरी पे हो रही है। तो आपने जो सवाल पूछा था, ये एक सिस्टम है हमारा अर्थ का, ये चलेगा, और ये लंबी समय जियोलॉजिकल टाइम स्केल में होता है, तो ये होता रहेगा, एंड वी विल सी दीज एडवेंचर्स हैपनिंग। मैम, सर की ही बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए, क्योंकि आपका इंडिजिनियस नॉलेज पे भी आपका काफ़ी डिटेल्ड काम है, तो लोकल फैक्टर्स जो हैं, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो या जो बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं या अन्य प्रोजेक्ट हैं उत्तराखंड में, वो कितना बड़ा फैक्टर बन रहे हैं पर्टिकुलरली हिमालयन ग्लेशियर्स के लिए? Thank you, Rahul, and I'm privileged to share the dais with some very stalwarts in their subject, and we have a very eminent people who are sitting out just off the dais also. So, yes, like I would like to speak on from a different perspective, like looking at Himalaya from as a living system, because Himalaya को हम सिर्फ एक पहाड़ या चट्टान या आइस के चट्टान की तरह ही नहीं देख सकते, हमें उसे एक लिविंग सिस्टम की तरह देखना है कि उसमें फॉरेस्ट भी हैं, उसमें ग्लेशियर्स भी हैं, उसमें सॉइल भी हैं, उसमें माइक्रोब्स भी हैं, उसमें ह्यूमन बींग्स भी हैं। तो जब हम ग्लेशियर की बात करते हैं, जब जैसे सर ने बताया, डॉक्टर डोभाल ने, कि लाइक ग्लेशियर्स ऊपर से तो पिघल रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग, वी नो दैट इट इज़ हैपनिंग एंड एवरीवेयर, दैट इज़ द रियलिटी कि हमारा जो 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो हमें रखना है, उससे शायद हम अब बहुत मुश्किल हो रहा है। मे बी वी हैव जस्ट रीच दैट ऑल्सो, दैट थ्रेशोल्ड वाज ऑल्सो क्रॉस्ड फ्यू डेज बैक, so that the global melting will continue, but there are many local factors also which we have to take into consideration. For example, the forest fire burning. So forest fire जो forest burn हो रहे हैं या जो हमारे forest degrade हो रहे हैं, तो how much black carbon they are releasing into the atmosphere, and how much this black carbon is actually going and it is being transported by the wind to the glaciers, and then they settle on the top of the glaciers and ice, and जब ये black carbon उसमें settle होती है, तो जो उसकी reflectivity होती है, that reduces from 90% to almost 60%. So that is a major factor, and then we also have to see that from below when we say that the glaciers are they are getting also melting from below the surface, that means when the forests are getting degraded, जो forests कट रहे हैं, तो जो rock है, जो surface है, that is getting exposed. And when it is getting exposed, that means it is absorbing more heat, और वहाँ temperature, local temperature बढ़ रहा है, और वो local temperature भी फिर glacier को melt कर रहा है. So these are some local factors which have to be taken into consideration. And I'm fortunate to share with that at Doon University, we have undertaken
a study which is a critical zone observatory at Pranmati, Himalayan Pranmati Basin. So this study is funded by Ministry of Earth Sciences, and we are one of the collaborative partner along with the Delhi University, IIT Mumbai, then GSI and some I think two more institutions. JNU is also part of that. So in that study हमने जो हमने इसमें देखा कि किस तरह से जो ब्लैक कार्बन का emissions था, वो फॉग जब फायर बर्निंग हो रही है और जिस समय आपके जो टूरिस्ट सीजन है उस समय वो किस तरह से बढ़ जाता है, एकदम दुगना हो जाता है। और फिर जब वो फॉरेस्ट फायर बर्निंग और टूरिज्म के टाइम पे उसका जो रेट है, एंड देन दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द रेडिएटिव फोर्सिंग। तो जो रेडिएटिव फोर्सिंग है वो बढ़ गई कम से कम 12 से 15 मीटर स्क्वायर, जो वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो दैट इज़ अ स्मॉल चेंज बट इट इज़ इनफ टू मेल्ट द ग्लेशियर एट द लोकल लेवल। जो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा वो आगे बढ़कर उसमें देखा जा सकता है। फिर हमने दूसरी जो स्टडी की है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से फॉरेस्ट की हेल्थ, अगर हम फॉरेस्ट को हेल्दी रखते हैं तो क्या वो ग्लेशियर मेल्ट को कम तो नहीं कर सकता पर कुछ तरीके से थोड़ा रोक सकता है या उसे पीछे धकेल सकता है, तो ताकि हमें समय मिल जाए संभलने का, हमें अडेप्टेशन का समय मिल जाए। तो उसमें हमने देखा कि जो हेल्दी फॉरेस्ट हैं तो उनके जो ब्रॉड लीव्स जो हमारे रोडोडेंड्रॉन है या ओक फॉरेस्ट है, तो दे हैव मोर कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब दिस सूट और ब्लैक कार्बन को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं इन कंपैरिजन टू द पाइन। तो जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो फ्रेगमेंटेड हो रहे हैं। जब हम भूटान को देखते हैं, भूटान से हम सीख सकते हैं। भूटान इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल विच इज़ अबाउट 60% ऑफ फॉरेस्ट कवर, वेयर उत्तराखंड वी से दैट 65% फॉरेस्ट कवर, but most of the forest in Uttarakhand is fragmented. But if we see at Bhutan, it is in the form of a continuum. So वो continuum हमें यहाँ भी maintain करने की ज़रूरत है। जितना भी हमारा degradation हो गया है, तो अगर हम native species से rhododendron वगैरह या ऊपर अल्पाइन जोन में भी हमें बर्च, इस तरह की सिक्किम ने भी ये पहल की है, वहाँ पे उन्होंने इस तरह से प्लांटेशन किए थे रिस्टोरेशन के थ्रू, एंड दे फाउंड दैट देयर वाज अ रिडक्शन 40% ऑफ ब्लैक कार्बन। So these are very healthy examples which can be replicated in different parts. Thank you. भोगने सर, जब हम कहते हैं कि आर वी लिसनिंग, उससे पहले एक सवाल ये है कि इज़ द गवर्नमेंट लिसनिंग, स्पेशली वाइल मेकिंग पॉलिसीज। गवर्नमेंट, हमें लगता है कि पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे इज़ द गवर्नमेंट रियली लिसनिंग टू दिस क्वेश्चन दैट ग्लेशियर्स आर मेल्ट। डोभाल सर, ये आप भी पॉलिसी में रहे हैं तो मैं सेम चीज़ आपसे भी बाद में जानना चाहूँगा। भोगने सर से शुरू करते हैं। I can vehemently say नहीं, यही दिक्कत है कि सरकार को कोई गंभीरता से लेने को तैयार ही नहीं है और यह समझते हैं कि सरकार सो रही है। पर मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा, और आपकी जो बातें हैं और मैडम ने जो कही, मैं आपके साथ अगेन आई हैव ब्रॉट अनदर सेट ऑफ हार्ड साइंटिफिक डेटा विच कैन be verified by anyone. It's not that I'm keeping it, I'm sharing with you. You can just Google it down, you will get the data. And before I say anything, I really feel privileged to be speaking in front of Padma Shri Shekhar Pathak ji. It's an honor, sir. We had very long discussions during the Supreme Court expert committee that was formed after 2013 Kedarnath disaster. So it's an honor, sir. What Dobal Saab said, I mean, listening to, because government is listening, but whether the people have the information, do you actually know what should be listened or what actually should be known, right? We, sensu lato, we speak about global warming, temperature rising, glacier retreat, so on and so forth, but what are the hard facts, right? So I'll be coming directly to your point, but before that, what Dobal Saab had shared, one thing, starting with Shekhar Pathak Saab, during that committee, one term was very oftenly discussed. That was the paraglacial zone, if you remember, sir. And that paraglacial zone that starts in northwestern part of Himalaya from roughly 2,200 meter and above. That means, and that zone is, at that elevation, earlier the glaciers were occupying the valleys, river valleys, all the major valleys, and with the passage of time, they have gone back to 3,500, 4,000 meter elevation from 2,200 meters onwards. And in the process, what they have done is, they have left the trails of deposits in those valleys between 2,200 meters to 35, 38 or 4,000 meters. So that is
the thing which everybody has to know, first of all, that where we are settling, if we know that this is the zone, this is the material already left by the glaciers, right? I'll be making it very fast. Secondly, what he was talking about, scientific fact, the scientific term for that is precession. What he was talking about, Earth's rotation and that, the one thing is precession. And that the difference between precession is 26,000 years, precession. And in the Earth orbital, elliptical orbit, there are two conditions, perihelion and ephihelion. In one, the Earth is closest to the sun, and in other, the Earth is farthest to the sun. And second, we all know that we are taught that the Earth is inclined 23.5 degrees to its axis. It's not 23.5. It is actually hovering between 17 degrees and 26 degrees. And the median of that 17 and 26 is 23.5. So it's not that always consistently it is 23.5. Now you imagine a condition that it is at 17 degree, it is at aphelion, and it is at the precision level, closest to the sun. Obviously, it will be getting the radiations directly onto the surface of the Earth. And that's exactly what I'm saying. So as a geologist, I can say, right. Anyway, so these are the things, and glacial and interglacial periods are quite common in the history of the Earth, and we are living in the interglacial period, which of course denotes the warming, not the lower temperatures. These are the general hard facts that one should first of all know. And I think a few days back you might have seen that post on the WhatsApp or Facebook that Antarctica is having more than 1,000 volcanoes beneath it. Will you ever believe this? But it's the fact, right? So are we listening? Yes, sir, we are listening. And as I said that we have inventoried how many, 490 is the exact number of the glacial lakes, as I said earlier, hazardous. And out of them, 42 are highly hazardous. 5 in Uttarakhand have already been studied by Geological Survey of India. And every year, the bathymetric surveys are being carried out. The health of them is consistently being monitored. And now with the help of CDAC, if you know that, that's an institute that is with the electronics and the communication systems. So they are installing early warning system for some of the lakes, and South Lonak is prominently one of them. And gradually they have allocated. There was one Swiss development cooperation, if you see, SDC. The government of India had an MOU with them, and studies are being carried out, steps are being taken, budgets are being allocated. I can tell you the budget figure also. Yeah, I have those figures also. We agree So, to take yes, that. government is listening. I take your point, क्योंकि हम लोग भी जब कोट करते हैं अपनी जर्नलिस्टिक स्टोरीज में तो वो GSI का ही डेटा कोट करते हैं, और ये सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि इस दिशा में काम हो रहा है. लेकिन सर आपके पास मैं आऊँगा कि जब कोई प्रोजेक्ट फिर आता है तब इतनी असंवेदनशील क्यों हो जाती हैं सरकारें कि उसी डेटा को बाईपास करने के तमाम तरीके निकाल लिए जाते हैं. उसमें से जैसे EIA का ही है, हमने देखा कि कितना लड़ झगड़ के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये जो रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट था उसको कंट्रोल करने के लिए कितनी कमिटीज़ बनी, कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी. तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टिंग हो जाती हैं जब हम ये कहते हैं कि हाँ गवर्नमेंट इज़ लिसनिंग, अपने ही डेटा को बाईपास करने के लिए तरीके खोजने लगते हैं. देखो आप बड़े चतुर मॉडरेटर हो, आपने मेरे लिए सवाल बदल दिया. ठीक है, आपने कहा था मैं दोनों से एक ही सवाल पूछूंगा कि आर यू लिसनिंग, और आपने मेरे को कह दिया कि कॉन्ट्रडिक्शन क्यों होता है, मतलब सर्विंग से नहीं पूछा आपने. ठीक है, ऐसे है. देखो पहले तो मैं ये बता दूं कि आर वी लिसनिंग का सीधा सीधा अर्थ है वी हैव सर्वे ऑफ इंडिया, वी हैव जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वी हैव स्पेस साइंस इसरो, वी हैव जीबी पंत इंस्टीट्यूट इन अल्मोड़ा, वी हैव FRI, वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. हमारे पास 11 एजेंसीज हैं, सासे है डिफेंस का, 11 ऐसे वाडिया इंस्टीट्यूट है यहाँ, 11 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसको मॉनिटर करते, जो जिस पे पढ़ाई लिखाई करते, प्रोजेक्ट चलाते हैं, अपने इन्फ्लुएंस देते हैं. अब सरकार उनको खूब पैसा देती है भर भर के,
और एक तो ग्लेशियर्स पे इंस्टीट्यूट भी बनने वाला था, यहाँ पे रोक दिया गया था, नहीं तो एक वो भी होता, क्योंकि एक लाइफ लाइन है इंडो गंजेटिक प्लेन की ये। अगर गंगा सूख जाएगी तो 33 करोड़ लोग डायरेक्ट प्रभावित होंगे, ठीक है। तो इसलिए एक चीज़ और बता दूं मैं कि सबसे पहले उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो 2005 में एक कमेटी बनी थी ग्लेशियर्स पे, ध्यान है कुसुम, जिसमें मैं था। मैं 2 मेंबर के हिसाब से था, एक डायरेक्टर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, एक यूकॉस के डीजी के हिसाब से, और वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और नपलचाल उसके शायद मेंबर सेक्रेटरी थे। हमने फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट की थी, तो तिवारी जी की गवर्नमेंट चली गई थी 2007 में, बीसी खंडूरी साहब को जाके हमने ग्लेशियर की फर्स्ट रिपोर्ट, जिसका केदारनाथ त्रासदी में यूज़ हुआ था, और उसी रिपोर्ट में सीएम ने उसी समय आदेश किए थे कि जो गंगोत्री ग्लेशियर में जो भीड़ जाने लगी थी उसको बैन उसी रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। हमने ये कहा था उनको, मुख्यमंत्री जी को, संडे का दिन था और 9 नवंबर की बात है। अब हमने ये कहा था कि हम लोग ने रिपोर्ट बना दी और फिर खेल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक पॉइंट मुझको बता दो जो मैं अभी एग्जीक्यूट कर दूं। तो हमने कहा था कि आप कम से कम, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारा गंगोत्री ग्लेशियर हो रहा है, जो उस समय उसका रेट जो है 20 मीटर था। तो उस समय उन्होंने आदेश जारी किया था, जो आज भी इन्फोर्सेबल है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ ब्लैंकेट सबको नहीं जाने देता है, वो दैट इज द कंसिक्वेंस ऑफ दैट रिपोर्ट। दूसरा, हमने कार्बन फुटप्रिंट पूरा ग्लेशियर्स में पड़ा और हमने रेडियो आइसोटोप स्टडी कराई कि ग्लेशियर का जो पानी है अगर वो मेल्ट हो रहा है तो नदी पे जा रहा है, क्योंकि नदी का पानी तो कम हो रहा है, अगर मेल्ट होता तो बाढ़ आ गई होती। तो हमने दोनों की आइसोटोप्स निकाले, क्योंकि हर पानी का, इसका भी एक अपना नेचर है, इसका आइसोटोप अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। हमने एक स्टडी कराई, उसमें हमें सिग्नेचर नहीं मिले ग्लेशियर के, उसमें नदी में नहीं मिला। हमने पानी कहाँ जा रहा है, हमने अरोड़ा जी से पूछा जो वाटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा जी ये तो हमको भी पता नहीं है, हम सोच रहे हैं अंदर जा रहा है पानी, और अंदर कोई गोल्डन लेक बन रही है। हमने कहा गोल्डन लेक कब खुलेगी, वो आज भी ढूंढ रहे हैं कि पानी कहाँ जा रहा है। दूसरा जो आपने पूछा, जो हमारी कई रिपोर्ट्स हैं जिसको आप कहते हो कि सड़क नहीं बननी चाहिए, ये डैम नहीं बनना चाहिए, और वो बन जाता है। यही है ना आपका सवाल, कि जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट कुछ है, वो जनरली उन लोगों की होती है जो उस सब्जेक्ट के वो होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, और जियो टेक्नीशियंस होते हैं, सोशल फील्ड से भी लेते हैं लोगों को, जो सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट होगा उसको भी रखते हैं। लेकिन मैं खुद इन कई जगह में रहा हूँ, ये बात ठीक है कि कई जगह अननेसेसरी कंस्ट्रक्शंस और वो होते हैं, रिस्पेक्टिव टू द वट एवर द रिपोर्ट इज, वो होते हैं। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है कि इन चीज़ों का बहुत बड़ा असर प्रोजेक्ट्स पे होता है और लोग उसका खिलाफत करते हैं, और सरकार प्रेशर में आके कई चीज़ों को रोकती है और विड्रॉ करती है। तो जो रिपोर्ट होती है, वो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, उस रिपोर्ट का पब्लिक प्रेशर होता है, उस रिपोर्ट का सरकार पे प्रेशर नहीं होता, पर उस रिपोर्ट का पब्लिक प्रेशर होता है, जब पब्लिक में आती है कि एक्सपर्ट्स ने ये बोला, और उसमें काफ़ी नामी ग्रामी लोग होते हैं। तो हमेशा आप भी अपने उसमें कोट करते हो जब भी बोलते हो कि उन्होंने ये बोला, आपने कभी ये नहीं बोलते कि मैंने बोला। तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस एनवायरनमेंट, ये 1995 से चल रहा है। तो यू हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन, हमें सड़क, डैम्स, बिजली, पानी भी चाहिए, लेकिन हमको अच्छी इन्वायरमेंट भी चाहिए। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ में मेरे से पूछें तो मैं चाहूँगा एक बार मैं पैदल चला जाऊँगा, कम सड़क होगी तो देर में चला जाऊँगा, मुझको अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, ये मेरा अपना मौक़िफ़ है।
हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं इस सेशन को रैप करने के, तो आप सभी लोगों से मैम एक लास्ट एक रिमार्क आप सभी लोगों से लेंगे, जिसे एज ए टेक अवे भी लोग लेके जाएं कि इस टॉपिक के लिए आप खुद यूनिवर्सिटी में हैं, यूनिवर्सिटीज़ का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इस जैसे सब्जेक्ट को डिसमिनेट करने में और आम लोगों को इससे अवेयर करने में कि सब हर एक पर्टिकुलर रोल में एज ए स्टूडेंट, एज ए लेमैन, एज ए एक्सपर्ट और या फिर उत्तराखंड के नागरिकों होने के नाते भी क्या वो रोल्स हो सकते हैं कि इस टॉपिक के प्रति थोड़ा और संवेदनशील सब लोग हो सकें। और जैसे सर ने कहा कि लाइक देयर इज़ अ नीड टू स्ट्राइक ए बैलेंस, तो वो बैलेंस तभी संभव हो पाएगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इसमें करें और इसमें हम सिर्फ सरकार को ही नहीं, सरकार पे ही हम सारा जामोदार नहीं डाल सकते, हमें एज ए कम्युनिटी को एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब हम देख रहे हैं जो भी त्रासदियाँ हो रही हैं उसमें जो वहाँ के लोकल लोग हैं वही संवेदनशीलता को बिल्कुल वो नहीं उस तरह से देखते हैं और वहीं पे जाके वो अपने सारे इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। तो उनको संवेदनशील कैसे करना है, उनको कैसे एम्पावर करना है, वो बहुत ज़्यादा अब इसकी ज़रूरत है। और अभी सिटीज़न साइंस का जो कॉन्सेप्ट आया है आजकल कि कैसे हम अपने गांव में, कस्बों में या जो भी हमारे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, उनको भी हम इकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट की तरह ट्रेन करें कि वो जो आपका डिस्चार्ज फ्लो रेट वगैरह है उसको मेजर कर सकें। और वहाँ पे अगर हम कुछ वेदर स्टेशन की भी यहाँ पे कई बार हुए थे कि वेदर स्टेशन लगे थे, तो उनको ट्रेन करें कि वो किस तरह से वहाँ के लोकल टेम्परेचर वगैरह को मेजर करें। तो इससे बहुत बड़ा मतलब इसमें एक योगदान हमारा जो समाज है, जो साइंटिस्ट है, जो गांव के लोग हैं, जो भी एक नेचुरल साइंटिस्ट है, जो कि आजकल ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया है कोई भी प्रोजेक्ट में। तो जो भी प्रोजेक्ट है कि उसको सक्सेसफुल बनाना है तो वहाँ की कम्युनिटी का जो ज्ञान है, विजडम है, जैसे हमने अभी लद्दाख में ही हम एग्जांपल ले सकते हैं जो आइस स्तूपा है, तो वहाँ की जो कम्युनिटी का ज्ञान था तो उन्होंने उस तरह से कृत्रिम ग्लेशियर का वहाँ पे निर्माण किया। उस कृत्रिम ग्लेशियर से उन्होंने सस्टेन किया वाटर फ्लो को ड्यूरिंग देयर जब उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सकता है। तो उसमें हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ड्रोन या आपके सैटेलाइट से, कि कहाँ कहाँ पे ऐसे साइट हैं जहाँ पे इस तरह की जो आपके कृत्रिम ग्लेशियर हैं उनका निर्माण किया जा सकता है। तो जो लोकल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उत्तराखंड में भी है वन पंचायत का कॉन्सेप्ट है और यहाँ की जो वन पंचायत की महिलाओं ने काफ़ी जो ओक वगैरह के, रोडोडेंड्रॉन के, फॉरेस्ट के प्लांटेशन के, उनके प्रोटेक्शन से बहुत सारी स्प्रिंग का भी जो है रिचार्ज किया था। तो बहुत 2000 स्प्रिंग्स को उन्होंने चमोली डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें यूनिवर्सिटी का रोल यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम अपने कैंपसेस में करें। और हमारे यहाँ जो रिसर्च हो रही है, रिसर्च भी एक हार्डकोर यूनिवर्सिटी में चलती है, तो उस रिसर्च को, जैसे हमारे यहाँ मीडिया का डिपार्टमेंट है, तो वो जो रिसर्च हो रही है उसको किस तरह से फिर ब्रॉडर सोसाइटी तक पहुँचा जाए, तो यूनिवर्सिटी कैन डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थैंक यू सो मच मैम। बोगना सर, मैं एक स्पेसिफिक सवाल आपसे, क्योंकि आप जीएसआई में हैं, आप वहाँ रहते हुए जब देखते हैं कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे मेन स्ट्रीम मीडिया में या किसी भी मीडिया में रिपोर्टिंग कैसे हो रही है, तो कई बार आपको कुछ ऐसे सजेशंस लगते हैं कि अगर एनवायरमेंटल इश्यूज़ की रिपोर्टिंग कुछ बदले या कैसे तरीके से हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे अवेयर हो पाएँ, वो आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। मैं बस 1 मिनट लूँगा आपका और एक ही चीज़ कहूँगा। मैंने कुछ और पत्रकार मित्रों से ये बात शेयर की है कि साहब, जब आपके आँख में प्रॉब्लम होती है या कान में होती है या हड्डी टूटती है, आई थिंक यू गो टू ए स्पेशलिस्ट, नहीं जनरल फिजिशियन झोला छाप के पास नहीं जाते। मेरा बहुत विनम्रता से अनुरोध है हाथ जोड़ करके पत्रकार या मीडिया बंधुओं से, जिस भी लैंडस्लाइड पर, ग्लेशियर पर आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, उससे सीधा एक सवाल पूछ लें कि भाई साहब, आपने जीवन में एक भी टनल बनाई? विनम्रता से बोल रहा हूँ, एक भी लैंडस्लाइड का जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आपने ज़िंदगी में किया या स्टेबलाइजेशन के मेजर सुझाए, या आपको लैंडस्लाइड की परिभाषा भी आती है? क्योंकि यहाँ पर जो विशेषज्ञ, मैं विनम्रता से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये देखा। अब साइंटिफिक इस पर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूँ बहुत सामान्य सी। हम ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हिमालय 55 मिलियन ईयर, 5.5 करोड़ साल पहले नहीं था। 55 मिलियन ईयर से डॉकिंग ऑफ इंडियन लैंड मास विद द तिब्बतन लैंड मास हुई, विद द वैनिशिंग ऑफ Tethyan Sea in between, then gradually Himalaya has risen. नहीं था।
55 मिलियन ईयर्स अगो जब हिमालय नहीं था, आदम जात नहीं थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत वातावरण में आज के तुलना में 12.5% अधिक था। तो यदि मानव का आना, जंगलों का कटना, सभ्यता का विकास कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह है, तो 55 मिलियन ईयर्स पहले कौन वो वजह थी? नंबर एक। नंबर दो, ऑक्सीजन पे आए, उल्टा चलें। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी आप साइंटिफिकली चेक कर लीजिए। लैंड मास, द फॉरेस्ट, they contribute 30% of the oxygen available. Oceans, they contribute 70%. And I have hardly seen any discussion going on the health of the oceans. ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप एक पत्रकार या मीडिया के तौर पर समाज, क्योंकि आप एक इंटरफेस हैं समाज के सामने, जो आप स्टोरी रखते हैं, जो तथ्य रखते हैं, समाज वही ओपिनियन एक बना लेता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं। जोशीमठ पर मेरा भी काम आप किसी ने पढ़ के नहीं देखा है। मैं कहता हूँ गूगल करिए, जीएसआई की रिपोर्ट है, एक एक फैक्ट, एक एक जगह का सभी लोगों ने क्या किया, 30 सेकंड और ले रहा हूँ, सारे क्रैक्स को एक साथ मिला दिया और उसको प्लान पर जब आप देखेंगे 2 डायमेंशन पर सारे क्रैक्स को यहाँ से वहाँ तक मिला दिया, मारवाड़ी से लेकर रविग्राम तक, और कहा कि पूरा जोशीमठ अलकनंदा में आ रहा। लेकिन हमारी रिपोर्ट पढ़िए, हमने कहा कि वो जो क्रैक अलग अलग जगह पे हैं उनकी जेनेसिस अलग है, उनके कारण अलग हैं, उनका टाइम फ्रेम अलग है, वो एक साथ नहीं जुड़ सकते। और दूसरी बात, जो ग्लोबल स्लिप सर्किल कहते हैं, सॉइल मैकेनिक्स की मूल अवधारणा के विरुद्ध है वो। जिस प्रकार का हेट्रोजीनियस मटेरियल जोशीमठ पर है, उससे ग्लोबल स्लिप सर्किल बन ही नहीं सकता। ये सॉइल मैकेनिक्स का मूलभूत सिद्धांत है। लेकिन लोगों ने क्या कहा, जोशीमठ को अलकनंदा में पहुंचा दिया था। तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ, आप जब भी जब विशेष सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं तो विषय विशेषज्ञ से अगर आप मशवरा करेंगे, आपको कुछ तथ्यात्मक जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डोभाल सर, आपका लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस पे, कि अगर इस पूरे डिस्कशन में कुछ आपके पास ऐसा रहा हो जो आपको लगा कि इसका जिक्र होना ज़रूरी है और मिस हो गया हो, उसी के साथ बस कंक्लूड करेंगे इस डिस्कशन को। जो मिस हो गया वो तो, जो हमने डिस्कस किया वो तो मेरे ख्याल से 5% से भी कम किया, क्योंकि इतने कम समय में इतने बड़े, इतने इस पे हाई साइंस जुड़ा हुआ है और वो इसको समझ सकता है, तो वो तो इस फोरम में हम समझा नहीं सकते। पहली बात ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जितना अभी तक पढ़ा है, कि देखिए जियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये अप्रिशिएट करेंगे कि छोटा है, ये तो मेरे को कॉन्ट्रडिक्ट तो करेगा नहीं, लेकिन जियोलॉजी में पहले दिन पढ़ाया जाता है कि अगर मैं ये वाइट शर्ट पहना हुआ हूँ तो ये आप एज्यूम ही कर सकते हैं कि इसका बैक भी वाइट ही होगा। अगर मैंने रेड पट्टी लगा रखी है तो वो आप कहोगे तो कमाल हो गया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो जियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जो देखते सामने से देखते हैं, अंदर आप एज्यूम करते हैं कि खोद के क्या निकलेगा। तो ये इसमें गारंटी के साथ कहना एक तो बड़ा मुश्किल का काम है। दूसरा जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी कमी है जिसके कारण हम बेसिकली, जब मैं चोपड़ा साहब मीटिंग कर रहे थे कि इस आर वी लिसनिंग, या आपने जोड़ा, ठीक है, मैंने कहा ग्लेशियर के पर, तो कहा आर वी लिसनिंग, इन्होंने, मैंने कहा वेरी गुड। मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जो है ना, हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन कतई नहीं है। अगर धराली में मर रहे हैं लोग तो किसका कसूर है? किसने कहा कि आप नदी सांड के नीचे, वो भी टर्न पे, क्योंकि वो तूफान ये नहीं जानता मुझे टर्न करना है कि इंडिकेटर देना है, वो तो सीधे आएगा। तो अगर आप इतना इनडिसिप्लिन करेंगे, और अगर सरकारी अफसर जाता भी है वहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीएम में कोई जाता कि मत बनाओ, तो वो लोग उसको प्रेशराइज कर देते हैं, नारे लगा देते हैं कि इसकी ट्रांसफ़र करो, अभी करो ट्रांसफ़र इसकी, ठीक है ना। तो जो डेथ होती है, डेथ के लिए नियरली 100% जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो सिटीजन्स हैं। उनको अच्छे से पता है कि मैं एक वल्नरेबल एरिया में हूँ,
लेकिन उस ये मान के चलता है कि कुछ नहीं होगा, और उसके बाद वो लोग बहते हैं, वो उनकी गलती है। कोई नहीं कहता कि आप वो उस एरिया में जाए। स्विट्जरलैंड में देखिए, वो 100 साल का डेटा लेते हैं, देखते हैं पानी कहाँ तक गया, वहाँ तक छेड़ते नहीं। आप किसी को मरते देखा, बाढ़ वहाँ भी आती है, ग्लेशियर वहाँ भी गिरते हैं। इनफैक्ट यहाँ भी जो हमारे यहाँ के पुराने गांव हैं वो भी रिसेंट आपदाओं में तो जो सुरक्षित हैं, नए constructions हैं। डिस्कशन का जो मेजर चंक हमने छोड़ा है, वो ये वाला एरिया छोड़ा है कि हमारा जो रिवर बेसिन मैनेजमेंट सिस्टम्स जो स्विट्जरलैंड में है, ये पूरे यूरोप में है। हम कुछ नहीं, हमको उसको कॉपी करना है। मैंने विज्ञान धाम की बिल्डिंग बनाई, मैंने 100 साल का डेटा लिया सबसे पहले पूना मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से। उसके बाद देखा नदी का लास्ट स्ट्राइक कहाँ पे, उसके बाद बिल्डिंग बनाई। तो ये विजडम सबको लगाना चाहिए ना। ये तो लोग तो वो तो एसडीएम या लोकल अफसर सोचता है मेरा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो पहले से कनेक्शन में रहता है कि कब मैं देहरादून जाऊँ। ठीक है, उसको कोई लेना देना नहीं है, जाओ हटाओ भाग जाओ यहाँ। रहना तो उसको है जो वहाँ पर है, वो क्यों ऐसा काम कर रहा। तो इस पे एक डिस्कशन कभी करेंगे। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। ये सेशन आपने बहुत धैर्य से सुना। बस एक कंक्लूडिंग सर एक कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाह रहे हैं, उसके साथ हम सेशन को एंड करेंगे सर। जस्ट चोपड़ा साहब ने जोड़ा कि आर वी लिसनिंग में एक ही धराली का साहब ने जिक्र किया। धराली जहाँ पर नुकसान हुआ उसका वैज्ञानिक आंकड़ा है कि 1835 में सिमिलर ऐसा फ्लो वहाँ आया था, और जो फैन जिस पर वो बगीचे और बस्तियां बसाई गई थी वो 1835 के इसी प्रकार के डेब्री फ्लो का कोन था, फैन था। नंबर 1। नंबर 2, 2013 की आपदा के बाद जीएसआई ने 5 जिलों में विस्तृत सर्वेक्षण किया। 2015 में रिपोर्ट दी, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेता, जिम्मेदार स्तर पर रिपोर्ट पहुँचाई गई। उस रिपोर्ट में धराली के बारे में जीएसआई की रिपोर्ट में लिखा है लाइन कि दी सेटलमेंट्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ खीरगाड़ गदेरा आर इन डेंजर। सो आर वी लिसनिंग? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत धैर्य से सेशन सुना। वैली ऑफ वर्ड्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे एक सेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।